last lecture was interrupted. Now we'll continue with the same. So हम लोग previously क्या discuss कर रहे थे? Pieces of evidence relevant for the addressee. तो proof of email address, the originator through the document, if any, like letters, the originator has mentioned in his email. तो वो क्या हो गया? That is the proof. बराबर है, उसको हम लोग as a proof consider करेंगे. I hope now my voice is clear. Hello, is my voice clear? Yes or no? Okay. So now as you can see here, we have something which is called as oral evidence of the person who may aware of the email address of the originator, proof of identification of the originator through the user log maintained with the network service provider. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ आईएसपी हम लोग इसको बोलते हैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. वाई? बिकॉज नेटवर्क जो यहाँ पे दिया है इट्स अ ब्रॉडर टर्म, जिससे हम लोग ज़्यादा लेवल तक इसको रीजनेबल रख सकते हैं. सो अगर मैं बोल रहा हूँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी जो है उसके पास भी प्रूफ होगा कि हाँ ये ईमेल एड्रेस से कोई एक ईमेल गया था, या अगर मैं कॉलेज के नेटवर्क में हूँ तो वहाँ पे भी रहेगा. द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट द ई मैसेज हैज़ बीन शोन इन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट of addressee has been sent from the email address of the originator. तो sent email में भी होगा ये. So ये क्या हो गया? That is the evidence. Oral evidence of the person who have acknowledged or who have knowledge of the received e-message by the addressee. अब oral message को हम लोग कितना relevance देंगे? ज़्यादा नहीं देंगे. We should have evidence related to acknowledgement of the recipient of an electronic record as a proof. Other supporting evidences वहाँ पे होने चाहिए. As per the Indian Evidence Act, legal presumption has been granted for the electronic messages. अब ये देखो, ये कोई ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 88 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस. क्या बोला था? कोर्ट में प्रिज्यूम that the electronic message forwarded by the originator through an electronic mail server to the addressee to whom the message purported to be addressee corresponds to the message. For example, for the purpose of this section, the expression addressee and originator shall, अब देखो ये shall मतलब compulsory, have the same meaning respectively assigned to them in clause B subsection. अब ये IT Act में हम लोगों ने क्या बोला है? जो मैसेज सेंड करता है, सोर्स जो है, सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिनेटर बोलेंगे. एंड जो रिसीवर है, रिसीवर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एड्रेस ही बोलेंगे. बराबर है, जिसको एड्रेस हुआ है वो ईमेल या मैसेज जो भी है वो. तो वो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट, इसके अंदर दिया हुआ है. ओके, वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ सेक्शन 13 क्या बोल रहा है? Time and place of dispatch and receipt of electronic message, like save as otherwise agreed between the originator and addressee. Dispatch of electronic record occur when it enter a computer resource outside the control of the originator. Dispatch and receipt. Dispatch मतलब कहाँ से send हुआ. So if this is computer A and this is computer B, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ओके, और यहाँ से सेंड हो रहा है एन ईमेल. सो कौन से टाइम पे ये सेंड हुआ, कौन से अकाउंट से सेंड हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग रखेंगे. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल. सो ये अगर ए से अगर सेंड हुआ है तो यहाँ पे क्या बोला है? उसको हम लोग क्या वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्पैच. एंड नेक्स्ट क्या है? रिसिप्ट. सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? सेव एज अदरवाइज अग्रीड बिटवीन originator and addressee. Time of the receipt electronic record shall be determined as follow. First is if addressee has designated a computer resource for the purpose of receiving electronic records. Recipient occurs at the time when the electronic records enter into a designated computer resource. If electronic record is sent to the computer resource of the addressee, that is not designated computer resource recipient.
ये है। देन आपने जो सेंड किया वो उसको मिला नहीं, बेसिक से पॉइंट्स दिए। इफ़ द एड्रेस ही हैज़ नॉट डेजिग्नेटेड टू अ कंप्यूटर रिसोर्स अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक टाइम, इफ़ एनी रिसिप्ट अकर व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द कंप्यूटर रिसोर्स। तो वो टाइम पे मैं मशीन पे ही नहीं था, मेरा टाइम ही नहीं था, मेरा ड्यूटी ही नहीं था, है ना। अब आपका जो प्रोफेशनल ईमेल्स रहते हैं वो आपके कंपनी के जो कंप्यूटर्स रहते हैं, पीसी रहते हैं, उसी के ऊपर रहेंगे, है ना। सो अगर जब आपको ईमेल सेंड हुआ है एंड यू आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, एंड जो आपका ईमेल अकाउंट है वो ऑफिस से ही अगर एक्सेस हो रहा है, सो आप वहाँ पे भी डिनाई कर सकते हैं कि मेरी जगह पे और समवन एल्स वाज यूजिंग दिस कंप्यूटर। सो सेव एज अदरवाइज अग्रीड बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच्ड एट द प्लेस वेयर द originator has his place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has his place of business. Next क्या बोला है? The provisions of subsection 2 shall apply notwithstanding that the place where computer resource is located may be different from the place where electronic record is deemed to have been received. बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब क्या है कि मैंने भेजा कहाँ पे था आपको, सपोज ऑफिस पे भेजा था, लेकिन आपने रिसीव कहाँ पे किया, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वहाँ पे रिसीव किया आपने। सो इफ़ द ओरिजिनेटर और एड्रेसी हैज़ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, सो प्रिंसिपल प्लेस जो भी रहेगा, अगर वो जो प्लेस है वही हम लोग ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट प्लेस या डेस्टिनेशन प्लेस कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ द ओरिजिनेटर और एड्रेसी डज नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस, his usual place of residence shall be considered as the place of business. Then usual place of residence in relation to the body corporate, अब देखो यहाँ पे individual person नहीं है, body corporate means we are talking about a company, registered company. So अगर ये registered है, द प्लेस वेयर दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड, उसी को हम लोग उसका प्लेस ऑफ ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर करेंगे। रिमेंबर, बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है? अ कंपनी, एन एमएनसी कंपनी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी होता है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013, लेटेस्ट है, पहले वाला जो था वो अभी गया। अदर अमेंडमेंट्स क्या दिए हुए हैं यहाँ पे देखो, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इट इज स्टेट दैट सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज मेंशन, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज CA। नाउ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन, ये सब जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल, है ना, शेल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम अंडर द IT एक्ट। अदर अमेंडमेंट्स डन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ IT एक्ट क्या क्या है वो, सो वो बेसिक आपको पॉइंट्स दिए। ना सेक्शन 90, अब देखो आपको ये याद रखना है, पावर ऑफ CA इज मेंशन इन सेक्शन 17 to 34 ऑफ IT एक्ट 2000। 7 2 34, ये वे में याद रखो, 17 to 34 power of CA is defined here. Section 17 to 34 defines the power of CA. याद रखो, 17 2 34, ये वे में याद रखना है ना। सेक्शन 90 presumes and as electronic records 5-year old। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ बैंक रिकॉर्ड्स है, कोई कॉलेज के रिकॉर्ड्स है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कोई भी रिकॉर्ड्स है, या अगर कोई आपके कंपनी में जॉब कर रहा था, तो एटलीस्ट टिल 5 years इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दोज रिकॉर्ड्स, कि अगर वो पर्सन ने अगर कोई भी प्रॉब्लम किया एंड आपके पास अगर उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो वो कहाँ पे मेंशन है? अंडर सेक्शन 90। सो in Indian Evidence Act. So where any electronic record perpetrating or proved to be 5-year old is produced, any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the digital signature which purports to be the digital signature of any particular was affixed by him or any person authorized by him by him in this behalf. So यहाँ पे for example explanation क्या दिया है? Electronic record was said to be in a proper custody if there are a place in which under the care of the person, जैसे हम लोग डेटा वेयर हाउस बनाते हैं ना, आपने सुना रहेगा डेटा वेयर हाउस,
सो डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोडाउन, जहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा दोनों रखते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा जो होता है उसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एनालिसिस, बराबर है, रिपोर्ट्स जनरेशन ये सब। और इसके ऊपर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस। सो अब मेरा लास्ट 5 ईयर्स में मेरा कंपनी क्या कर रहा था, कौन था, किसने सेल्स बढ़ाए थे, ये सब के लिए हम लोग ये डेटा वेयरहाउस मेंटेन करते हैं। तो डेटा वेयरहाउस मतलब क्या हो गया, हिस्टोरिकल प्लस करंट डेटा कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन आएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, किसके कस्टडी में है ये डेटाबेस, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। अगर यहाँ पे कुछ डेटा अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो प्रूव हैव टू बिन लेजिटिमेट, ओरिजिन कौन सा है, सर्कमस्टेंसेस कौन है, कौन से टाइप में आपने वो सेव किया था, ये सब आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन 131, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, है ना। मैंने यहाँ पे बोला था लाइक वी हैव हॉस्पिटल रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड। सो आपके पास अगर हॉस्पिटल या मेडिकल रिकॉर्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मना कर सकते हैं ना, वो टाइम पे चलेगा, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो कौन मना कर सकता है, हॉस्पिटल अथॉरिटी कैन डिनाई दिस, रिमेंबर हॉस्पिटल अथॉरिटी कैन डिनाई दिस। हु कुड नॉट रिफ्यूज, हु कुड रिफ्यूज, सॉरी कुड नॉट नहीं, हु कुड रिफ्यूज। सो लाइक वी हैव बैंक्स और हॉस्पिटल्स or any government agency, they can refuse without a proper warrant. So no one shall be compelled to produce a document in his possession or electronic record under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in a possession or a control or unless such लास्ट मेंशन पर्सनस कंसेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेंट। सपोज इफ आई से, आपने कभी कभी अगर फॉर्म भरा रहेगा, दे आस्क फॉर अ कंसेंट, कंसेंट मतलब परमिशन, वेयर दे आर गोइंग टू शेयर योर डॉक्यूमेंट, योर रिकॉर्ड्स विद एनी थर्ड पार्टी फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, फॉर एनालिसिस, फॉर एनीथिंग। सो विदाउट द कंसेंट बैंक कैन नॉट शेयर। रिमेंबर कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट मतलब योर परमिशन। सो अगर मेरा एक अकाउंट अगर ICICI बैंक के पास है, देन दे कैन शेयर माई इंफॉर्मेशन विद सम सब्सिडियरी ऑफ ICICI like ICICI Direct and other subsidiaries, but they cannot share my data with HDFC without my permission, because मैंने यहाँ को परमिट नहीं किया था। So outside their organization without my consent, remember they cannot share it. Consent matlab you are giving them a permission of something. Then amendments to Bankers Book Evidence Act of 1891 and RBI Act 1934। अब देखो ये RBI Act जो है ये हम लोग हर जगह पे फॉलो करते हैं, है ना। RBI Act 1934, that is what we follow. So यहाँ पे क्या बोला है, the definition of banker's book is amendment by IT Act 2000 so as to include within its ambit printouts of data stored in floppy disk, tape or any other form, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज है। बिफोर द अमेंडमेंट बैंकर्स बुक इंक्लूड क्या होगा, लेजर्स होते थे, बुक रिकॉर्ड्स, डे बुक्स रहते थे, कैश बुक रहते थे, अकाउंट बुक एंड ऑल अदर बुक यूज्ड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। अब क्या है, यू हैव मेंटेन सम बुक्स। अब ये बुक्स में से कोई पेजेस अगर आपने फाड़ दिए, देन यू सपोज टू गिव रीजन फॉर दिस। विदाउट परमिशन यू कैन नॉट डू दैट। और ये ऑफिशियल बुक है, इसमें मिस्टेक्स भी नहीं चलेंगे। ओके सो अब हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव मेड अ रूल एज वेल। स्टार्टिंग से ये रूल है। अब स्टार्टिंग में जो बैंक्स होते थे वो इतने मल्टी लिमिटेड या नेशनलाइज या ऐसा कुछ नहीं रहते थे, वो टाइम पे कंसेप्ट ही अलग था। बट अभी हम लोगों ने रूल बनाया, तो आप देखो कि एज पर दिस रूल आपको हर एक जो डेटाबेस है ये मेंटेन करना पड़ेगा, एंड वो डेटाबेस बहुत क्लियर होना चाहिए। इफ़ इट्स नॉट क्लियर, इफ देर आर सम मिस्टेक्स, then bank is responsible
for those mistakes. जैसे वी हैव एग्जाम्पल ऑफ दिस पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी आपने सुना रहेगा. सो उसमें क्या हुआ था, दे हैव देयर लेजर्स. अब उसमें से कुछ अगर चीज़ें इशू हो रहा है, बैंक के रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहा है वो, बिकॉज सॉफ्टवेयर वॉज ओल्ड. सो अब योर सॉफ्टवेयर वॉज नॉट अपडेटेड और इट वॉज नॉट मैचिंग विथ स्विफ्ट रूल, इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स है. सो अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक ओनली. सो आरबीआई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दिस. नाउ द डेफिनेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी अमेंडेड बाय आईटी एक्ट क्या बोला है, हैज इंटर आलियाज बिन एडेड टू क्लॉज 8. अब यहाँ पे क्या बोला है, क्लॉज 8 क्या बोल रहा है, सर्टिफाइड कॉपी मीन्स व्हेन अ बुक व्हेन द बुक्स ऑफ द बैंक एज पर द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट. सो ये सर्टिफाइड कॉपी है. सर्टिफाइड कॉपी मतलब बैंक ने आपको ये बुक दिया है, उसका कॉपी दिया हुआ है. कंसिस्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स आज के टाइम पे, या फिर कोई फ्लॉपी के ऊपर, डिस्क के ऊपर, या आपको अलग से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंड किया है. जैसे अगर मैं अपना पासबुक फिल कर रहा हूँ और एल्स आई एम आस्किंग फॉर 1 year's स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैं किसको दूंगा, मेरे सीए को दूंगा. बेस्ड ऑन व्हाट सीए विल फाइल माय आईटीआर. सो वो सीए ने इसको एविडेंस क्यों माना, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द बैंक. एंड जो हम लोग के आईटी जो हम लोग का गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी इसको क्यों मान रहा है, बिकॉज दिस इज द आईटीआर, सॉरी दिस आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द बैंक. एंड उसके लिए मैंने अपना पैन कार्ड नंबर दिया यहाँ पे, और माई पैन कार्ड इज रजिस्टर्ड प्लस आधार कार्ड, है ना. सो मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड है. नाउ सेक्शन 2A इज एडेड बाय बैंकर्स, जो क्या बोल रहा है, दिस टेल्स अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी विच इज रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 2A कंडीशन इन द प्रिंट आउट. प्रिंट आउट ऑफ एंट्री ऑफ द कॉपी, प्रिंट आउट रिफर्ड टू इन सेक्शन इन subsection 8 of section 2 shall be accompanied by the following, namely, first क्या बोला है, a certificate to the effect that it is the printout of such copy or a copy of such printout by the principal accountant or a branch manager, इनके पास से आया. then next क्या बोल रहा है, a certificate by a person in charge of the computer system containing the brief description of the computer system, in particular safeguards adopted by the system to ensure that the data is entered or any other operation performed only by the authorized person, safeguard adopted to prevent and detect unauthorized changes in the data, है ना, कोई भी आके चेंज करेगा ऐसा नहीं चलेगा. देन सेफगार्ड अवेलेबल टू रिट्रीव डेटा, हर किसी को नहीं मिलेगा. और अगर कोई सिस्टमेटिक फेलियर आ रहा है या कुछ दूसरा अगर रीज़न हो रहा है, डू यू हैव अ बैकअप ऑफ दिस. देन द मैनर इन विच डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू रिमूवेबल लाइक फ्लॉपी या डिस्क या टेप. सो अगर आप कैसी भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एनी वन कैन एक्सेस इट. देन नेक्स्ट क्या बोला है, द मोड ऑफ वेरिफिकेशन, आप किसको डेटा दे रहे हैं, कौन से बेसिस पे, है ना, वो आएगा. द मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच डेटा स्टोरेज, द अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज एंड कस्टडी ऑफ सच डेटा स्टोरेज. सेफगार्ड प्रिवेंट करेंगे, अगर कोई फ्रॉड हुआ, टेम्परिंग हुआ तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, बेसिक पॉइंट्स है. सो अब यहाँ पे देखो कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, बहुत बेसिक से पॉइंट्स दिए है इसमें कोई. ओके, लेक्चर एंडेड, आई जस्ट स्टार्ट अ न्यू लेक्चर गाइस, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ. Okay, so we'll just wait 1 minute till other people joins. Okay, guys, ask other people to join quickly. हाँ, एक टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है आज. प्लीज आस्क अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन क्विकली.
Okay, we'll just wait for 30 seconds. Okay, so till other people join, we'll just continue with what we were discussing. Last part है. So यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है? We have this many points जिसमें in general आपको बोला है कि ओके आपको ऑथोराइज लोगों को ही देना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन सा कहाँ पे रखा हम लोगों ने, बैकअप हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर किसी के पास बैकअप का कॉपी नहीं होना चाहिए. एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बैंक के पास जो डेटा है उसका मेन अथॉरिटी किसके पास है ना. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. कौन एक्सेस कर पाएगा, मैनेजर या उसके बाद का कोई पर्सन, उसके बाद कोई पर्सन, हु कैन हैंडल इट. ये पॉइंट्स रहेंगे हम लोग के. सो दिस आर द मेन पॉइंट्स. देन सी वाला जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है, अ फर्दर सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम to the effect that best of his knowledge and beliefs such computer system operated properly at material time. So अगर मैं बोल रहा हूँ कि there are some mistakes, okay, if I say there are some mistakes in record, so वो टाइम पे जो भी यहाँ पे इंचार्ज है, whoever is in charge, he is supposed to submit a letter कि इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस रिकॉर्ड्स आर नॉट टेम्पर्ड. अगर उसको पता नहीं है, ही इज़ इन चार्ज, एंड फिर भी अगर रिकॉर्ड्स अगर चेंज हो गए, देन दिस पर्सन जो भी एडमिन रहेगा, आई कैन से एडमिन या मैनेजर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. देन दैट्स इट. सो ये हम लोग के बेसिक कुछ एविडेंस रिलेटेड पॉइंट्स थे और कुछ नया नहीं है इसमें. सो वी आर डन विथ फर्स्ट हाफ ऑफ यूनिट 5. ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरी वन. इफ़ एनी वन ऑफ यू गॉट एनी क्वेश्चन, लेट मी नो. अदरवाइज विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट चैप्टर. एनी वन, एनी डाउट्स गाइज? एनी डाउट्स, एनी वन? जल्दी बताओ, कोई डाउट्स नहीं है किसी को भी? सो विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट चैप्टर ऑफ आर सिलेबस. सो सून विल बी एंडिंग विद आर सिलेबस देन. सो एक बार ये वाला टॉपिक हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी. याद रखो जो भी मेन कंसेप्ट थे ना, वो हम लोगों ने जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है एंड स्पेशली फर्स्ट 3 यूनिट्स, इसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट थे हम लोगों के. इसके बाद के जो आपके यूनिट्स है इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट्स नहीं है. ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एवरीवन. हेलो गाइस, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? ओके ओके, हाँ. सो यहाँ पे हम लोगों ने, आई जस्ट क्विकली, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, कि बैंक के पास एक ऑथोरिटी रहेगा, बैकअप एक रहेगा, और वो जो बैकअप जिसके पास है, अगर कुछ हुआ रिकॉर्ड्स में या कुछ टेम्परिंग हुआ, तो जो एडमिन था, ही इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ दिस रिकॉर्ड. ठीक है. सो अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो अगर हम लोग बोलेंगे कि कहीं पे अगर कोई चेंजेस हुए, तो ये जो पर्सन है ना, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि एज पर बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज वो जो रिकॉर्ड्स है वो उसमें टेम्परिंग नहीं हुआ है, ये उसको बताना पड़ेगा. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरी वन. नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वापस ये वाला टॉपिक स्टार्ट करता है. अब इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स नहीं है तो, एनी वन, एनी डाउट्स, लेट मी नो. एनी डाउट्स, एनी वन? वी आर डन विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 5. अब देखो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए फर्स्ट 3 यूनिट्स में ज़्यादा कंसेप्ट है. देर आर नॉट मच कंसेप्ट इन, देर आर फ्यू कंसेप्ट इन यूनिट 4 एंड वेरी लेस कंसेप्ट इन यूनिट 5. ठीक है, यूनिट 5 इज प्योरली बेस्ड ऑन फ्यू कॉमन सेंस टॉपिक.
जो आप एक बार पढ़ के भी आंसर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, साइबर कंज्यूमर्स इन इंडिया। इसके पहले जो देखा, बैंकर्स एक्ट, मतलब बैंक्स को अपने बुक्स सेफ रखने हैं। यही सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे। सो कुछ ज़्यादा इतने यूनिक टॉपिक्स नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एंड दैट्स वाई वी आर डन विथ यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 5 का लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ योर IPR, cyber law syllabus, which talks about basically chapter 9, जो हम लोग के कंज्यूमर्स है। और वो कंज्यूमर्स जब अगर साइबर वर्ल्ड में अगर कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो उनके क्या पॉइंट्स रहेंगे, उनके क्या राइट्स रहेंगे। सो अब बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि अगर कंज्यूमर्स है, सो जो उनके राइट्स फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे वैसे ही कुछ राइट्स उनको वर्चुअल वर्ल्ड में भी मिलने चाहिए। सिंपल है। सो वही कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द राइट्स, रिमेंबर व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट्स ऑफ कंज्यूमर in cyber world. So first we have like Amazon, then Flipkart. अब ये जो भी हम लोगों के पास बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ये जब कोई प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं हम लोगों को, इन इफ देर आर सम डिफेक्ट or product is not as per the quality, then आपके पास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स है क्या, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, साइबर कंज्यूमर्स इन इंडिया प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो, फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो एक्ट है, जो रूल्स है ना, वही हम लोगों ने बोरो किए हैं फॉर साइबर प्रोडक्ट एज वेल। हम लोगों ने अलग से कोई नए रूल्स नहीं बनाए। तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पता रहेगा, वो सेम प्रोविजंस जो है वो हम लोग यहाँ पे बोरो कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो दिए वो क्या है, आपको फर्स्ट क्या बोला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजिस्लेचर in performance of this act to provide for a better protection of interest of a consumers, to make provisions for establishment of consumer councils and other authority। अब देखो आज के टाइम पे we can purchase some we can purchase something from here, like insurance और सम पॉलिसी। तो जब अगर मैं कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस परचेस कर रहा हूँ, सो व्हाट आर द रूल्स। सबसे पहले क्या बोला है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब ये एक्चुअल जुडिशरी नहीं है, बट थोड़े बहुत पावर्स इसको दिए हुए हैं। क्वासी मतलब फॉल्स। ठीक है, दिस इज द फॉल्स कोर्ट, जिसको हम लोगों ने थोड़े बहुत पावर दिए हुए हैं। ये किसी को सजा नहीं सुना सकते। दे कैन नॉट से कि ओके भाई तुमने ये मिस्टेक किया, आई विल गिव यू 6 months पनिशमेंट। तो ये कुछ नहीं हो सकते। ये क्या करेंगे, ये अगर पिक्चर में आ रहा है तो आपको जस्टिस मिलेगा, कंपनीज जो है वो इनकी बात सुनेंगे, अदरवाइज फिर ये कोर्ट में लेके जाएंगे और वहाँ पे आपके ऊपर वापस जो कंपनीज है उनके ऊपर वापस प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो दे नो द लीगल सिस्टम प्रॉपरली। सो ये क्या बोलेंगे कि ओके आपकी वजह से ये कंज्यूमर को इतना हुआ है तो यू पे दिस मच फाइन टू दिस कंज्यूमर, ये वो बता सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बॉडी इज टू प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, सो दैट ये बड़े बड़े जो कंज्यूमर्स है छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को लेके वो वहाँ पे ना आए। सपोज अगर मुझे 1 year का कोई एक प्रोडक्ट का वारंटी मिला था, अब बिफोर दैट वारंटी प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गया, नाउ कंपनी इज नॉट रेडी टू रिपेयर दैट प्रोडक्ट विद इन दिस वारंटी पीरियड, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू कंज्यूमर कोर्ट
क्या आपने वारंटी दिया था देने के टाइम पे? नाउ वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट ट्रेडर एंड सप्लायर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज ओपनड अप न्यू एरा, वही है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखो ये जो टाइम था ना, ये टाइम पे क्या है, वी हैव मोर कंज्यूमर्स एंड लेस प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आपको पता है 1991 जो है इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। सो इसके पहले फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में है नहीं ज़्यादा, तो इंडियन कंपनीज के पास कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन वाज मिसिंग, एंड दैट्स वाई वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कंज्यूमर्स हैज़ टू एक्सेप्ट इट। एंड वो टाइम पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। नाउ टू गिव द प्रॉपर जस्टिस, ठीक है, टू गिव अ प्रॉपर जस्टिस वी केम अप विद इन 1986 वी केम अप विद दिस प्रोविजन। अब 1986 में जब हम लोगों ने ये प्रोविजन लाया, वो टाइम पे भी सबको पता नहीं था। बाद में हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड गिविंग अ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, जागो ग्राहक जागो वाला जो स्लोगन है। सो गवर्नमेंट साइड से, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड्स, गवर्नमेंट का जो मशीनरी है, दे स्टार्टेड गिविंग सच एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, जागो ग्राहक जागो वाला, याद रखो। सो वो जो है ना, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे हम लोग को क्या बोला, यू गो टू दिस प्लेस, दे प्रोवाइड्स यू अ प्लेस, वहाँ पे जाओ, एक फॉर्म भर दो, और उसके बाद में यू जस्ट गो एंड रिविजिट दैट, आपका कंप्लेन जो है वो ये रिजॉल्व कर देंगे। टू प्रोवाइड फॉर अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, देन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर सच एज राइट टू गिव प्रोटेक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2005 में आरटीआई फाइल किया, राइट टू इंफॉर्मेशन। सो इफ आई एम परचेसिंग सम प्रोडक्ट, so the content of product should be clearly mentioned on product, that is as per the RTI Act of 2005। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो। और इसी में मैगी फंसा था, मैगी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, दोज इन्फॉर्मेशन वाज नॉट मैचिंग विद देयर ओरिजिनल प्रोडक्ट, एंड हेंस मैगी के ऊपर वो बैन लगा, सारा प्रॉब्लम हुआ। अगर उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर दिया रहता था तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। नेक्स्ट इज द राइट टू गेट अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स। अब देखो आप अगर देखेंगे ना, हम लोग को बहुत सारे जो आइसक्रीम्स आता है, याद रखो, आप अगर उसके ऊपर पढ़ोगे ना, वो मिल्क नहीं रहता है, फ्रोजन गुड्स या कुछ तो एक लिखा रहता है। सो दोज आर नॉट मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क जो रहेगा ना, वहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर मिल्क। सो आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आइसक्रीम भी परचेस करते हो ना, तो वो ध्यान से वो उसके ऊपर पढ़ना, वो जो कप रहते हैं हम लोग परचेस करते हैं उसके ऊपर। सो द राइट टू बी एबल टू मेक अ चॉइस द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर कोई एक कंपनी अगर खुद आ रही है, अगर कॉम्पिटिटिव ग्राउंड्स नहीं है, सो क्या होगा कि वहाँ पे जो अपने कंज्यूमर्स है उनके पास कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं। अगर दूसरा चॉइस ही नहीं है तो जो एक कंज्यूमर जो भी आपको दे रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। सो वो टाइम पे आपके पास यहाँ पे चॉइसेस होने चाहिए। आप अगर 1991 के पहले का एरा अगर देखेंगे, वी हैव वेरी लिमिटेड चॉइस, एंड 91 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, 1995 में हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ साइन किया। इसके बाद में नाउ वी हैव अ वेरी टफ कंपटीशन टू स्टे इन मार्केट, एंड इसके लिए एवरी कंपनी ट्राइज देयर बेस्ट। और उसके साथ में राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये किसके थ्रू कंप्लीट हुआ, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। देन रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, जैसे आप देखो कि जो फ्लिपकार्ट है उसका एक केस हुआ था कि उन्होंने एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सबसे पहले 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ किया, ठीक है, और उसके बाद में इसके ऊपर दे प्रोवाइडेड 50% डिस्काउंट
ऑन दिस। सो वो क्या हो गया, ये आपके साथ चीटिंग ही हो गया ना, एक प्रोडक्ट मैं आपको वही प्राइस पे दे रहा हूँ। या एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, मैं अभी आपको 100 का प्रोडक्ट 200 पे करके देन उसके ऊपर आई विल गिव यू 30 या 30% डिस्काउंट। सो मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट से तो और भी महंगा ही मैं बेच रहा हूँ। Getting? So, in order to meet the aforesaid objective to provide the establishment of the consumer council and other authorities are there. And at same point of time, Flipkart के ऊपर ही आपको ये प्रॉब्लम भी पता चला रहेगा ऑन फ्लिपकार्ट दैट कुछ जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है एंड बेबी प्रोडक्ट्स है, they were manufacturing in Madhya Pradesh instead of some proper environment hygiene या ये। Okay, just 1 minute. Okay, I hope now screen is visible to everyone. Please interrupt in between अगर screen अगर properly visible नहीं है, please हाँ. If you are messaging here, sorry. If messaging here and मैं कोई screen पे हूँ तो वहाँ पे नहीं पता चलता है. Okay, so you supposed to unmute yourself and interrupt in between कि आपको screen properly visible नहीं है. आपके मैसेजेस यहाँ पे है, मैं जो विंडो पे हूँ वहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, सो मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस। विनय विनय म्यूट योरसेल्फ। You are again and again unmuting yourself. Okay, so I'll just quickly revise it again. We have started with the last chapter of our unit 5. इसके अंदर हम लोगों ने क्या बोला, यूनिट 4 एंड 5 में बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई नए टॉपिक नहीं है, कॉमन सेंस वाले हैं। उसके साथ में इन यहाँ पे हम लोगों ने राइट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन साइबर वर्ल्ड अगर कोई एक प्रोडक्ट अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, क्वालिटी वाइज अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक वी परचेस फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, सो वो टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ दिस सिचुएशंस, राइट। देन सो उसके लिए हम लोग के पास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। सो जो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोवाइड किया था वो सेम रूल्स जो है वो हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी प्रोवाइड किया है अभी। सो अगर फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो तो वो सेम वे में यहाँ पे वो सेम चीटिंग जो है अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी करेंगे तो सेम टाइप का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, सेम वे में हम लोग उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, द मेन ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस एक्ट प्रोवाइड्स अ बेटर प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जैसे अगर मैंने कोई ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेस किया है, कोई एक पॉलिसी परचेस किया है, अब वो जो इंश्योरेंस या पॉलिसी है परचेस करने के टाइम पे जो कंपनी है उन्होंने जो प्रोमिस किए थे, लाइक कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड होगा, बट जब अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर एक्चुअल में डिमांड कर रहा हूँ दैट टाइम दे आर नॉट प्रोवाइडिंग। सो वो टाइम पे आई कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट कि मुझे हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए रिक्वायरमेंट है एंड मैंने ये इंश्योरेंस लेके रखा था या ये मेडिक्लेम लेके रखा था, नाउ कंपनी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग देयर टर्म्स कंडीशन एंड दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर मी। सेम वे यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वासी जुडिशियल सिस्टम्स रहेंगे, मतलब इनके पास थोड़े बहुत जो पावर्स होते हैं कोर्ट के वैसे होंगे, लेकिन क्या पावर्स रहेंगे, दे कैन सॉल्व द डिस्प्यूट, दे कैन आस्क एनी कोर्ट, सॉरी दे कैन आस्क एनी कंपनी टू पे सम फाइन जो भी रहेगा वो टू द कंज्यूमर। देन सेम वे यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोला है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है, 1986 में हम लोग के पास कंज्यूमर्स ज़्यादा थे और प्रोड्यूसर्स कम थे, है ना, कंपटीशन था ही नहीं, बहुत कम था। आप देख लो कि आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे, सो यू विल फाइंड कि बिस्किट्स के आज जितने ब्रांड्स है वैसे नहीं थे, सोप के आज जितने ब्रांड्स है वैसे नहीं थे, मेनली आपको गिन के 2-4 सोप सारे घर में मिलेंगे, और आज अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ घर में आपको 10 अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो क्या है कि वो टाइम पे आपके पास चॉइसेस ही ज़्यादा नहीं है, क्लोथ्स के चॉइसेस कम है, आपको और कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, आप जैसे व्हीकल्स देख लो उसके चॉइसेस आपके पास कम है, टीवी आपको ख़रीदना है, रेडियो ख़रीदना है, उसके बहुत लिमिटेड चॉइसेस है। सो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा है ही नहीं, तो जो आपको कंपनीज प्रोवाइड करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करेंगे वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। लेकिन देन 1991 में हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लिए,
है ना, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आने दिया। अब फॉरेन कंपनीज अपनी कंट्री में जो लेवल के प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो इंडिया में आके वो देने लगे। तो क्या हुआ कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो पहले, इंडियन कंपनीज जो पहले बहुत नाटक कर रहे थे, जो बहुत भाव खाते थे, अब वो दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इंडियन कंज्यूमर्स। पहले वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। आप देख लो कि जो जैसे वी हैव MTNL BSNL, 6-6 महीना लगता था एक कनेक्शन आने के लिए। दे आर नॉट एट ऑल रिस्पेक्टिंग द कंज्यूमर्स। अब देखो 6 महीना लगता है क्या एक लैंडलाइन कनेक्शन आने के लिए, बट वो गवर्नमेंट लेवल पे वो गवर्नमेंट स्पीड से काम चल रहा था, सॉरी टू से दैट। अब क्या हुआ, नाउ वी हैव 10 डिफरेंट कंपनीज इन अ मार्केट जो आपको सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी अगर आप देखेंगे उनका जो सिस्टम है वो उनको प्राइवेट कंपनीज के लेवल पे लाना पड़ा, और फिर भी अभी भी वो उतना नहीं ला पा रहे हैं। दैट्स वाई आप देखो MTNL BSNL का मर्जर हो रहा है। उनका शेयर वैल्यू भी अगर आप देखेंगे ना तो एकदम चिल्लर के भाव पे आ गया। मतलब दे आर एट दिस लेवल। क्यों? स्टार्टिंग से कोई एक जो गवर्नमेंट थिंकिंग जो है ना वो चल रहा है। सो प्राइवेट कंपनीज वी हैव एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो आपको वे बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्स भी बहुत प्रॉपर है। तो वो टाइम पे आप मुझे कम प्राइस में बेटर सर्विस, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन वाई शुड आई गो फॉर MTNL और BSNL, है ना। और उनके अगर आप देखेंगे, अगर उनके आप अगर ऑफिस में जाएंगे, इफ़ यू से कि आई एम गोइंग टू कैंसिल योर कनेक्शन, तो आपको रीज़न पूछेंगे। दे विल ट्राई टू कन्विंस यू, दे विल ट्राई टू होल्ड यू बैक। आप MTNL BSNL में जाओ, एक फॉर्म लो और कुछ पूछते भी नहीं है, लो भाई भर के दे दिया, कनेक्शन कैंसिल करना है, ठीक है, दे एक्सेप्टेड, अप्रूव इट, खत्म। दे डोंट केयर बिकॉज दे आर इन अ गवर्नमेंट सर्विस जहाँ पे कंज्यूमर रहे ना रहे, उनको मंथली बेस पे पेमेंट मिलना ही है टिल देयर रिटायरमेंट। सो दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द सर्विस और क्वालिटी और एनीथिंग। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ बेटर प्रोटेक्शन इंटरेस्ट देन टू प्रोवाइड द राइट्स। अब यहाँ पे अगर राइट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, राइट्स ऑफ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, like right to give a protection against the marketing of goods which are hazardous or dangerous to the life and property, the rights to get correct information, prices of the various goods, जो है वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे बोला कि फ्लिपकार्ट या है राइट ऑफ कंज्यूमर्स एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने चाहिए। फ्लिपकार्ट का केस हुआ था जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट के प्राइजेस को डबल करके देन उसके ऊपर 30-40% आपको डिस्काउंट दे रहे थे। पीपल थिंक लाइक कि हम लोग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, बट इफ़ यू एक्चुअल कैलकुलेट तो आप ओरिजिनल प्राइस से भी महंगे ले रहे हैं। देन फ्लिपकार्ट का अगेन एक इशू हुआ था जहाँ पे उनके उनके पास जो लिपस्टिक एंड बेबी जॉनसन टाइप के जो बेबी प्रोडक्ट्स जो सेल हो रहे थे वो नकली थे। मतलब मध्य प्रदेश में बाल्टी भर भर के लिपस्टिक बन रहा था एक छोटे से कारखाने में, विच वॉज नॉट एट ऑल मेंटेनिंग एनी हाइजीन और एनीथिंग। सो वो जो केमिकल से, प्योर केमिकल से बने हुए लिपस्टिक वॉज सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट वॉज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट इट जब तक एक न्यूज़ ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के थ्रू वो रिवील नहीं किया। सो अगर उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कैंसर हो जाता है, किसी को किसी का जान चले जाता है, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। सो यू शुड बी यू सपोज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है द पर्सन हु इज सेलिंग और फ्रॉम हुज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स आर गेटिंग सोल्ड आउट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का सिलेबस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में एक लेक्चर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर्स डिस्कस कर लेंगे। So we are not left with much now. Any doubt, anyone? Anyone, any doubts? Hello? Any doubts? Okay. So I'll stop today's lecture here only. मिलते हैं next time.